Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it and wish you all best of luck. In this video, you all can attempt 3 more champions level questions from elasticity. Have a look at the questions now. This is the answer key. Okay. So let's start discussing the solutions. Question number 1. Atmospheric pressure is P naught and density of water at the sea level is rho naught. If the Bull's modulus of water is B, calculate the pressure deep inside the sea at a depth of h below the surface. So देखो, सबसे पहला जो थॉट आता है ये सवाल पढ़ के, प्रेशर का तो हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, बट दिस फॉर्मूला वाज फॉर आइडियल लिक्विड्स वेयर डेंसिटी वाज कांस्टेंट. बट यहाँ पे डेंसिटी डेप्थ के साथ वेरी करेगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट, इनिशियल डेंसिटी दिया हुआ है रो नॉट. जब y की वैल्यू 0 होगी, डेप्थ की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, प्रेशर, डेंसिटी एंड डेप्थ. डेंसिटी और वॉल्यूम, ये दोनों चीजें वेरी होने वाली. हम लोग जैसे जैसे और नीचे डीप जाएंगे, डेंसिटी बढ़ने वाला है, एंड सेम मास का एलिमेंट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होने वाला है, बट मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. मास को हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते, और यहाँ पे दोनों साइड अगर हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन मिल जाएगा. डी ऑफ मास विल बी 0 एंड RHS विल बी रो टाइम्स डी ऑफ वी प्लस वी टाइम्स डी ऑफ रो. तो यहाँ से डी रो अपॉन रो ये माइनस ऑफ डी वी अपॉन वी के इक्वल आ रहा है. एंड फ्रॉम बर्ल्स मॉड्यूलस फॉर्मूला B कैन बी रिटन एज change in pressure dP volumetric stress upon minus dV upon V volumetric stream. तो यहाँ से minus dV upon V को dP upon Bull's modulus लिख सकते. So d rho upon rho will be equals to dP upon Bull's modulus, और जो small change in pressure dP होगा उसको हम लोग rho g dy लिख सकते, राइट, अपॉन B. तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ रहे. हमारा टारगेट है प्रेशर और डेप्थ में रिलेशन निकालना. एट अ डेप्थ ऑफ h व्हेन y इज इक्वल्स टू h वी वांट टू फाइंड प्रेशर. सो देखो कैसे अप्रोच करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है. सो इफ वी कंसीडर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डेंसिटी और प्रेशर ये 2 वेरिएबल्स आ रहे, और अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन देखते, इस इक्वेशन में तो 3 वेरिएबल्स है, प्रेशर, डेंसिटी एंड y डेप्थ. तो ये इक्वेशन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. वी कैन ओनली सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स. सो ये वाले इक्वेशन से हमें प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन मिलेगा. ऑल्सो इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डेंसिटी और डेप्थ में रिलेशन मिल जाएगा. तो उन दोनों रिलेशंस को मैनिपुलेट करके हम प्रेशर और डेप्थ में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट? सो आवर अप्रोच शुड बी to solve this equation 1 and this equation 2.
तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट्स। व्हेन डेंसिटी वाज रो नॉट, प्रेशर वाज पी नॉट, और किसी भी जनरल डेंसिटी रो पे प्रेशर पी हो जाएगा। एक्चुअली ये एच डेप्थ वाला डेंसिटी मान लो और ये एच डेप्थ वाला प्रेशर मान लो। सो LHS विल बी लॉन ऑफ रो, लिमिट्स डालने के बाद लॉन ऑफ रो अपॉन रो नॉट, एंड RHS विल बी इक्वल्स टू P माइनस P नॉट अपॉन B। तो ये रिजल्ट आ रहा है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को अभी सिंप्लीफाई करते। इक्वेशन 2 में d रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू रो g dy अपॉन b। ये रो को भी यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे डाल दो तो ये रो स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। लिमिट्स ऑन y इज फ्रॉम 0 टू h, लिमिट्स ऑन रो इज फ्रॉम रो नॉट टू रो। सो LHS will become -1 upon rho from rho naught to rho, और RHS GH upon B। लिमिट्स पुट कर दो, इसको यहाँ पे आके सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट्स पुट करने पर 1 अपॉन रो नॉट माइनस 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू GH अपॉन BR। अभी देखो इक्वेशन 2 और 1, इन दोनों इक्वेशन में से हमें रो को एलिमिनेट करना। We don't want rho. We want to find relation between pressure P and depth H. और पहले इक्वेशन में रो अपॉन रो नॉट हमें पता है, लॉन ऑफ रो अपॉन रो नॉट हमें पता है P माइनस P नॉट अपॉन B के इक्वल होगा। सो इक्वेशन 2 को अगर हम लोग रो से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे तो रो अपॉन रो नॉट आ जाएगा, बट RHS में भी एक वेरिएबल रो आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय रो वी कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय रो नॉट। रो नॉट तो एक कांस्टेंट ही है। So this will give us 1 minus rho naught upon rho equals to rho naught GH upon B, right? So यहाँ से हमें rho naught upon rho 1 minus rho naught GH upon B के इक्वल आ रहा। दोनों साइड अगर हम लोग लॉन लेते तो ln of rho naught upon rho is equals to ln of 1 minus rho naught GH upon B, इसके इक्वल आ रहा है। बट यहाँ पे ln of rho upon rho naught, तो अगर इसको इंटरचेंज करना है तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस ऑफ ln रो अपॉन रो नॉट विल बी ln of rho naught upon rho, एंड ln of rho naught upon rho को हम लोग माइनस ऑफ P माइनस P नॉट अपॉन B लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, and this is equals to ln of 1 minus rho naught GH upon B। तो अभी हमारे सामने जो इक्वेशन, इसमें खाली प्रेशर और H डेप्थ यही दो अननोन्स है, डेंसिटी एलिमिनेट हो चुका है। सो इसको सॉल्व करके हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? P नॉट माइनस P अपॉन B इक्वल्स टू ln of 1 minus rho naught GH अपॉन B। B को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो P विल बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस B ln ऑफ 1 माइनस रो नॉट GH अपॉन B। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 2। A metal cylinder of length L and radius R is fixed rigidly to the ground with its axis vertical. A twisting torque tau naught is applied along the circumference at the top of the cylinder. This causes an angular twist of theta naught in the top surface. Calculate the shear modulus of elasticity of the material of the cylinder. Okay. So देखो ये सवाल को कैसे विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे एक मेटल सिलेंडर दिया हुआ है, मेटल सिलेंडर का जो लेंथ है L वो गिवन है, और टॉप पे थीटा नॉट एंगल से इसको ट्विस्ट किया जा रहा है, और उसके लिए टॉर्क टाउ नॉट अप्लाई किया जा रहा है, राइट? और हमें शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना। शेयर मॉड्यूलस का जो थियोरी था उसमें हम लोग फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगाते थे। अगर मान लो ये एक ब्लॉक होता और ऊपर वाले सरफेस पे अगर हम लोग F फोर्स अप्लाई कर रहे और उसकी वजह से अगर इसमें डिफॉर्मेशन थीटा का आ रहा है, नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, राइट?
तो इस थीटा को अपन shear strain बोलते थे, and this theta was equals to this deformation delta L upon this height h, ये shear strain के इक्वल होता था, राइट। तो देखो इस केस में अगर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग लेते, ये वाली रिंग को ऑब्जर्व करो, जिसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं। लेट मी जूम इन द डायग्राम। मान लो ये आर रेडियस का एलिमेंट है, आर रेडियस का सिलिंड्रिकल एलिमेंट विद थिकनेस dr, थिकनेस इसका dr मान लो, और अभी इसको ऑब्जर्व करो। इसका भी जो नीचे वाला पोर्शन है वो फिक्स्ड होगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन, इस ऊपर वाले पोर्शन को थीटा का ट्विस्ट दिया जा रहा है। सो ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पोर्शन, जिसको मैं डार्क हैच कर रहा हूं। थीटा का ट्विस्ट देने पर वी कैन अज्यूम दैट एक तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो अंदर की तरफ, दिस लेंथ इज L, तो ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ थीटा L से जा रहा होगा, सॉरी थीटा इंटू R से जा रहा होगा। थीटा का जो ट्विस्ट है वो इस एक्सिस के अबाउट दिया जा रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज R, सो थीटा R से वो अंदर चला गया होगा, और नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, तो करस्पॉन्डिंग shear strain, इसको हम लोग थीटा R अपॉन L लिख सकते हैं। ये सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे, राइट। और करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेन, जो shear स्ट्रेस होगा, shear stress is given by shear strain multiplied by modulus of rigidity, ये shear stress होगा, राइट। इमेजिन करो कि ये जो एलिमेंट है ये सेंटर पे d फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, एक बहुत ही छोटा सा हम एलिमेंट ले रहे, और इस एलिमेंट को हम लोग ऐसे एक ब्लॉक की तरह मान सकते। एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है वो आर्क होगा, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल d फाई इसका लेंथ भी बहुत ही छोटा होगा। द लेंथ ऑफ दिस पार्ट विल बी r d फाई। इसको एक ब्लॉक की तरह विजुअलाइज करो, और ये नीचे वाला पार्ट फिक्स्ड है, राइट। ये वाला लेंथ L के इक्वल है, तो ये एक छोटा सा अपन आर्क कंसिडर कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल आर्क ऑफ थिकनेस dr, राइट। और अंदर की तरफ ये कितना स्वे कर रहा है, अंदर की तरफ थीटा r स्वे कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने shear strain निकाला और shear stress भी निकाला। तो इस shear stress के करस्पॉन्डिंग जो shear force होगा उसको अपन shear stress मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे। इस केस में जो स्वे है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो shear force भी इसी सरफेस के पैरेलल जनरेट होगा, और उसके कैलकुलेशन के लिए अपन एरिया भी इसी सरफेस का लेंगे। ये वाला जो एरिया है इसको अपन r d फाई मल्टीप्लाइड बाय dr लिख सकते हैं, राइट। दिस इज द shear force which is being generated in that small element, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो एक तरीके से आर्क है। इसका अगर मैं ये सेंटर मान लूं तो इसका रेडियस स्मॉल r होगा, राइट। तो इस shear force के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क जनरेट होगा उस एलिमेंट में, स्मॉल टॉर्क d टाउ will be equals to this shear force, this shear force multiplied by r, right। ये shear force का जो डायरेक्शन है वो हर एक एलिमेंट में टेंजेंशियल होगा, तो हर एक एलिमेंट पे यही टॉर्क जनरेट हो रहा होगा। हर एक एलिमेंट मतलब इस सर्कुलर रिंग में जो हर एक एलिमेंट होगा वो, तो r रेडियस का जो सर्कुलर रिंग है उस पे जो टोटल टॉर्क जनरेट होगा वो कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए हम लोग d फाई एंगल को इंटीग्रेट करेंगे। d फाई एंगल का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा। सो ओवरऑल टॉर्क ऑन दिस एंटायर सर्कुलर एलिमेंट विल बी सिग्मा s into r square dr into 2 pi, राइट। यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन था, दिस वाज टॉर्क only on this element which was subtending an angle of phi at the center पे ये वाला एंगल phi सबटेंड कर रहा था,
तो पूरे सर्कुलर रिंग पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो हमें d5 को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा, विच विल बिकम 2 पाई, राइट। सो यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू डाल दो। द टॉर्क ऑन दैट एलिमेंटल रिंग, कंप्लीट एलिमेंटल रिंग, विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एस इज थीटा आर। सिग्मा एस की वैल्यू यहाँ से बोरो कर लो, सो इट विल बी थीटा आर अपॉन एल टाइम्स ईटा इंटू आर स्क्वायर 2 पाई डी आर। और पूरे सिलेंडर पे अगर टॉर्क चाहिए तो अभी हम लोग आर को भी 0 से कैपिटल आर वेरी करवा देंगे नेट टॉर्क निकालने के लिए, राइट। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये हमें नेट टॉर्क दे देगा। और नेट टॉर्क टाउ नॉट के इक्वल गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। टाउ नॉट विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, 2 पाई ईटा इंटू थीटा बाय एल, 2 पाई ईटा थीटा बाय एल, ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर बच जाएगा। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी आर टू द पावर 4 अपॉन 4। कांस्टेंट टर्म्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, सो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारा टारगेट है ईटा निकालना। यहां से ईटा की वैल्यू 2L टाउ नॉट अपॉन थीटा नॉट पाई आर टू द पावर 4, ये ईटा की फाइनल वैल्यू आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी। A body of mass 3.14 kg is suspended from one end of a wire of length 10 meters. The radius of cross section of the wire is changing uniformly from 5 into 10 to the power minus 4 at the top, that is the point of suspension, to 9.8 into 10 to the power minus 4 meters at the other end. Young's modulus दिया हुआ है। Find the change in length of the wire assuming that the wire is massless. So यहाँ पे रेडियस लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। टॉप पे जो रेडियस है उसको R1 मान लेते हैं। अभी सब कुछ वेरिएबल फॉर्म में रहने दो, एंड में वैल्यूज डाल देंगे। R1 की वैल्यू 5 into 10 to the power minus 4 गिवन है, और बॉटम पे जो रेडियस है दैट इज R2 which is 9.8 into 10 to the power minus 4। इसको ऊपर फिक्स किया हुआ है, राइट। और नीचे, इसके नीचे एक मास M अटैच्ड है। M mass is given to be pi kg, 3.14 kg, right? So इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगाना है कि वायर के अंदर चेंज इन लेंथ कितना होगा, और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। टेंशन तो पूरे वायर के अंदर कांस्टेंट होगा mg, बिकॉज वायर इटसेल्फ इज मासलेस, बट बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, एक्सटेंशन के लिए हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ T dy अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एरिया एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना पड़ेगा। y को ऊपर से मेजर कर लो, तो किसी भी y पे अगर हम लोग dy का एलिमेंट लेते हैं, इस dy एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, एंड रेडियस इज लीनियरली वेरी। तो रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ y को हम लोग my अपॉन my प्लस c लिख सकते हैं। m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब r2 माइनस r1 अपॉन ये टोटल लेंथ l दिया हुआ है 10 मीटर्स, सो स्लोप विल बी r2 माइनस r1 अपॉन l टाइम्स y, एंड c मतलब रेडियस व्हेन y इज 0, तो c की वैल्यू r1 होगी। सो ये r एज अ फंक्शन ऑफ y हमें पता चल गया। ओके, सो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ y कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और r को अभी के लिए my प्लस c के फॉर्मेट में रहने दो, m और c की वैल्यू हमें पता है। सो दिस इज एरिया एज अ फंक्शन ऑफ y। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा l विल बिकम टेंशन, टेंशन मतलब mg, और m पाई के इक्वल दिया हुआ है, सो पाई इंटू g इंटू dy, एंड एरिया मतलब पाई my प्लस c का होल स्क्वायर टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, ये हमें नेट एक्सटेंशन दे देगा। यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, g अपॉन y ये बाहर ले लो,
एज अ कांस्टेंट, और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन my प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन my प्लस सी इंटू 1 अपॉन m, लिमिट्स फ्रॉम 0 to L, right? So this will be minus g upon y, माइनस साइन लिमिट्स में एडजस्ट हो जाएगा, माइनस जी अपॉन मास इंटू यंग्स मॉड्यूलस। माइनस साइन को हटा के अपन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, लिमिट्स को L से 0 कर दो, सो ये 1 अपॉन ml प्लस सी, और y को 0 डालने पर ये 1 अपॉन सी, ये बच जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर, g अपॉन my, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिमिट्स को इंटरचेंज किया था तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। पहले 0 डालेंगे तो 1 अपॉन सी आएगा, और फिर L डालेंगे तो -1 अपॉन ml प्लस सी आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल रहा है, ml प्लस सी माइनस सी, न्यूमरेटर में ml बच जाएगा और डिनोमिनेटर में ml प्लस सी इंटू सी, ये बच जाएगा। m और m कैंसिल, एंड फाइनल रिजल्ट g इंटू L अपॉन यंग्स मॉड्यूलस y इंटू ml प्लस सी टाइम्स c, राइट? यहाँ पे m और c की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस विल बी gl अपॉन y, m वाज r2 माइनस r1 अपॉन l, तो ml की वैल्यू r2 माइनस r1 होगी और c r1 के इक्वल था, सो ml प्लस c विल बी r2 माइनस r1 प्लस r1, मतलब ये r2 के इक्वल होगा, एंड c इज r1। तो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें वैल्यूज डाल दो, g की वैल्यू 9.8 ले लो, l की वैल्यू 5 गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस सॉरी l की वैल्यू 10 गिवन है, 10 मीटर्स, और यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11, इंटू 10 टू द पावर 11, r1 5 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड r2 इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4, सो यहाँ से 9.8 भी कैंसिल हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, उससे फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा डेल्टा एल, द नेट एक्सटेंशन। फाइनली इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -3 मीटर्स आ जाएगी, राइट? So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video, and take very good care of yourselves.